letter which is being shown on the screen, it is in Dari, it reflects that India paid $820,000 to TTP leadership through its collaborators. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian Embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions in the dossier of about $23.35 million. I'll be just showing one of those transactions. It's on the screen right now, in which $5 million were given to a sub-nationalist whose name is held with us to cause unrest in Balochistan. Confessional statement of Sarfaraz Merchant and Tariq Mir revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW through 2 Indian companies. The names are on the screen. And evidence of transfer of $3.23 million from RAW is held with us. These are some of the details of the terrorist funding. As I said, now I'll come over to weapons and equipment support to terrorists by India. Besides funding, India has also been rendering support to various entities through provision of weapons, ammunition, and improvised explosive devices. Recently, a RAW-sponsored network of 6 terrorists has been unearthed, which has linkages with attack on Pakistan Stock Exchange. That was on 29th of June, 2020. And it is also involved in the delivery of suicide jackets to various terrorist groups operating in Pakistan, besides undertaking terrorist activities. 2 RAW frontmen, Abdul Wahid and Abdul Qadir, along with 4 terrorists who are Afghan nationals, have been exposed in this case. The network is also involved in target killing of ulama, police officers, and notables. RAW was paying them handsome amounts for different activities. They were paying for a suicide bombing, 10 million rupees, for a vehicle-borne IED attack, 10 million rupees, for an IED, 1 million, and 1 million for a target killing. The security forces have also intercepted huge caches of suicide jackets, IEDs, explosives, weapons, and ammunition. The details can be seen on the screen right now. Here, we also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition, and IEDs to Tehreek-e-Taliban Pakistan commanders. The letter shown on the screen right now in Dari reads that TTP leaders, after collecting the weapons, safely reached their locations after crossing the border into Pakistan. RAW agent was found involved in motivating the tribals in Khyber Pakhtunkhwa to send fighters in Afghanistan for training. The letter being reflected on the screen
it reads that raw handler also delivered IEDs and weapons in the bordering areas of North and South Waziristan during this visit. India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. Confessional statement of Ajmal Pahadi validates this thing. Now, coming over to terrorist training in India, or by India. Now I am going to present evidence of presence of multi-purpose base camps which are being utilized by India for training, harboring, and launching of terrorists into Pakistan. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. The details are right now, they can be seen on the screen. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. Former Indian ambassador and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. The letter in Dari, being shown on the screen, reads that the camp housed 150 militants. On another occasion, India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar, for dissidents of Balochistan. The letter you can see on the screens, it narrates that RAW was responsible for provision of weapons and ammunition, for which 4 helicopters were also used. Ajmal Pahadi confessed in front of the Chief Justice of Pakistan that India had established 4 training camps for Altaf Hussain Group and its militants at Dehradun, Haryana, in northeast India. While the training duration varied from 15 days to 4 months, it was confirmed that 40 Altaf Hussain Group terrorists had received training in India who used to travel to New Delhi through a third country. Some of the terrorist incidents, I'd like to give some specifics as we have the evidence now. And these investigations confirm RAW's direct involvement in these terrorist incidents. BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019, in which 4 terrorists were killed, whereas 5 innocents were martyred. RAW officer Anurag Singh planned the attack, wherein $0.5 million were allocated by RAW for this attack. You can see some details flashed on the screen. I'll just explain them. Attacker Hamal Nawaz used an Afghan phone number and was in contact with an Indian phone number during the attack. Attack was masterminded by Dr. Allah Nazar and Aslam Achu. Both the individuals traveled to India on fake Afghan passports. Aslam Achu remained admitted in Indian hospital. You can see a picture of his in one of those hospitals, while he traveled under the cover name of Abdul Hamid. His passport, having double entry visa stamped in India, can also be seen in the picture. Dr. Allah Nazar also traveled to India on fake documents under the cover name of Haji Nabi. Dr. Allah Nazar is the main conduit between various BSNs and RAW handlers. 17 audio clips of his conversations with RAW handlers discussing future operations validate his undeniable connection with RAW. Now,
an audio clip will be played in which Dr. Allah Nazar receives instructions from an officer of Indian intelligence agency. Direct help to you from our side. Okay. Then it will be injurious to them. Then it will hamper their activities. Okay. They think that if AN is going to get help from India or some other place, then their primacy and their leadership will go, right? Okay. So that is one problem. And second problem is people from your group, they want to take support from others by saying that AN is regressive, AN is backing the Sardars, but we would like to establish a more democratic and open society, so we are not going to stay with AN and we will have our own group support us. So these are two different groups. They are there against you. They are opposed to each other, but they are against you. So I am afraid you may have to, stay in a different. You may have to bear the wrath of both. I find these people may try their very best to get it. So you will have to be very cautious, and you have to take good care of your own self. Okay. Right? And because you know your Sardar, they will never like us to help any non-Sardar. Okay. I think you understand that. You understand that. Yeah. So what we will do now, that you don't try to antagonize anybody now. You stay at the course and you do your duty, whatever you are doing, and you carry forward your operation to the best of your ability. And I am trying to generate some support from private sources, if not government ones. And they will reach you very soon. And because Dubai has become a den of ISI activity now, we would not like to conduct anything through Dubai. Now, the investigations of attack on Agriculture University in Peshawar of 26th October 2017, it led to the masterminds of APS attack. RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University, including Malik Faridoon, who was also involved in planning of APS attack. Malik Faridoon, soon after the APS attack, went to the Indian consulate in Jalalabad to celebrate. He also visited India for medical treatment in 2017. There he remained admitted in Primus Hospital, his name in the patient list, pictures with hospital attendant, and RAW handler Amarjeet Singh validate his connections with RAW. The attackers of Agriculture University were in contact with various Afghan numbers during the attack and live-streamed the videos to their handlers. Now, these videos were also uploaded from Afghan IP addresses. While meetings of Altaf Hussain Group with RAW's chief, Mr. Ajit Chaturvedi and Mr. Vikram Sood, were validated by Sarfraz Merchant as well as Muhammad Anwar in their statements. Recently, security forces have discovered RAW-affiliated sleeper cell in Karachi. 13 individuals of the gang have been apprehended and produced in anti-terrorist courts, whereas Mahmood Siddiqui, the main accused who was operating this network, is absconder and residing in India. 2 JITs have been constituted and investigations are underway. On 11th May 2020, Peshawar police became victim of an IED attack, which resulted in injuries to 2 police personnel and 3 others. The attack was masterminded by 2 RAW frontmen, Noor Muhammad and Zabiullah, who were found operating from Indian consulate in Jalalabad. You can see some details on the screen.
Busting of this network has averted planned future attacks on some important locations, which can be read on the screen. In June 2020, 3 RAW frontmen, Haji Habibullah, Haji Azizullah, and Haji Bedar, they were employed by Indian Consulate Jalalabad, tasked 6 Jamaat-ul-Ahrar terrorists, 3 Pakistanis and 3 Afghan nationals, in Pakistan to identify important personalities for target killing. The network has remained involved in various target killings in Peshawar in the past as well, and has linkages with the suicide attack of Mardan Judicial Complex in 2016. Further investigations are under progress. On 14th of August this year, Pakistan's intelligence agencies averted a massive terrorist attack planned by India. An officer from Indian intelligence agency, Major Farmin Das, which is his code name, operating from Kabul, was planning the attack. He arranged transportation of mines, rockets, and explosives, which have been recovered. The network had already carried out 7 terrorist attacks in Hub, Mastung, Quetta, and Sorab on Raw's behest. Something about Indian interference in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. India is aggressively pursuing clandestine agenda of destabilizing Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. Tangible evidence indicates that RAW is involved in planting IEDs in Azad Jammu and Kashmir to target civilians and military personnel. Since January 2016, 60 IEDs were planted, out of which 38 exploded, resulting into casualties of 13 civilians and 46 military personnel, whereas remaining 22 IEDs were successfully neutralized. Since January 2019, Indian intelligence handlers, having code names of Colonel Pandit and Colonel Maaz, using numbers as shown on the screen, delivered 9 IEDs to miscreants at the line of control. The forensic analysis of IEDs has confirmed use of Indian components. Explosives used, the nuts and bolts, the remote used, they all lead back to being manufactured by Indian companies, as you can see the details on the screen. A video tutorial for detonating the IED was also delivered by the operative from Indian Intelligence Agency. Its video clip is being played now. चला गया ठीक है देख लो ये है ना इसको दबाया हाँ ये मैं समझ गया हाँ ये हो गया उसके बाद ये आराम आ गया इसके ऊपर क्या करना आपने दबाया जी तो इसमें आपके उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए मतलब आमने सामने ये है कि दूर हो लेकिन वो चीज आपके सामने होनी चाहिए जो डब्बा ना दूसरा जी भैया ठीक है वो इसके नजदीक जब आएगा सामने होगा तो ये इसमें एक लिखा हुआ आ जाएगा जी चेक करने के लिए इधर आगे पार्टी इधर नीचे लिखा हुआ फायर जी ठीक है हाँ लिखा हुआ ये फायर दबा देना बस ये क्या कर देगा फायर ये अभी इसमें दोबारा लिखा हुआ आगे फायर जी फायर हो गया समझ गया इतना ही काम है ठीक है भैया ठीक है समझ गया भैया हाँ मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा इसकी कोई चक्कर नहीं इतनी जल्दी नहीं समझ अगर आ रही तो Right. There are 9 voice notes which confirm involvement of officers from Indian intelligence agencies. In one such voice note, an Indian officer explains the method for planting an IED. Just listen to this. सिंपल सा तरीका तुमने फॉलो करना है जहाँ पहले थोड़ा सा घूम फिर लो देख लो कौन सी जगह करना चाहते हो जहाँ तुम जहाँ चीज़ अंदर रखोगे ऐसे वक्त पे जब बंदे थोड़े बाएं दाएं हों फिर उसके ऊपर कोई बोरी शोरी रख लो फिर तार खींच के बाहर लाओ और फिर जगह पे बैठो तो उस जगह का तुमने एक वीडियो बना लेना है अच्छा वीडियो बनाना है कि भाई ये जगह है
तो जितने ज़्यादा होंगे बंदे दावत में खाना खाने वाले, उतना तुम्हारा भला होगा, उसी हिसाब से तुम्हारी कीमत आगे बढ़ेगी, ठीक है। और जो वीडियो तुम बना देना, थोड़ा एक ऑडियो बता देना ये जगह है, ये वो है, और उसका व्हाट्सएप का लोकेशन भेज देना, जिससे पता चल जाए कि ये लोकेशन क्या है। तो ऑडियो में भी थोड़ा बता देना ये जगह है, ये जैसे किसी भी जो दोमेल में है या पीर चनासी में है या मुजफ्फराबाद में है या बाएं दाएं कहाँ पे है, जो जगह है उसके बारे में और जो चीज़ है उसके बारे में बोल देना। फिर कार्रवाई से पहले एक आधा छोटा सा वीडियो बना लेना कि मैं पहुँच गया हूँ, मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। तो बाकी कार्रवाई के बाद तो मुझे तो वो कार्रवाई चाहिए जिसकी खबर मुझे खबरों से सुनाई दे, टीवी से सुनाई दे, इंटरनेट से सुनाई दे, अखबारों से सुनाई दे। अगर कुछ गलत होता है तो अगर मेरे राब्ते से छूटे तो फिर किसी और के राब्ते में भी नहीं आ पाओगे, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। RAW has also been attempting to establish a network of target killing of important personalities for a reward ranging between rupees 50 to 80 million. 5 करोड़ एक फ्लैट और सारा आने जाने का खर्चा। ठीक है, सही है। ये तो आपके साथ तय था, तो उसका क्या होगा? एडवांस का? एडवांस 10 लाख। ये आप अपने आप देखो कि आपने हमें फिदाइन से करवाना है या वैसे कोई शूटर वूटर अगर आपके पास है तो। लाहौर का टारगेट है, बड़ा आदमी है, हाई सिक्योरिटी में होगा। अगर आपका बंदा उसको कर सकता है तो मेरी तरफ से 50 लाख आपको जो है काम होने पर मैं आपको पाकिस्तानी दे दूंगा। आप उससे पूछ लो, फिर एक बार मेरे को बता दो, करना जल्दी पड़ेगा उसको। Now in this case, RAW officer Brigadier Munij, which is again his code name is MG, has transferred rupees 1.8 million to the account of an individual being motivated to undertake target killings. The money was transferred from a bank of a third country. RAW officer has been using 2 numbers of third countries in this case. You can see some details flashed on the screen. Coming over to RAW's destabilizing interference in Gilgit-Baltistan. India has for long been endeavoring to create unrest in Gilgit-Baltistan. In the context of provincial status for GB being discussed in Pakistan, on 28 September 2020, an important meeting was held in the Ministry of Home Affairs, New Delhi, to deliberate upon the methodology to trigger negative reactions. The salient revelations of the meeting are: RAW and IB highlighted that they are contemplating to subvert perceived changes in the status of Gilgit-Baltistan. After November 2020, hostile elements will be mobilized to undertake various subversive operations in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. RAW aims to exploit prevalent environment by staging some terrorist attacks on large public gatherings. Assassination of a mainstream or sub-nationalist leader in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan or a religious figure is being planned to arouse public anger. Some Indian efforts for politicization of FATF. While Pakistan remains firmly committed to the forum and our achievements for fulfilling the technical obligations remain unparalleled, India has consistently been endeavoring to politicize the forum for economic coercion of Pakistan. Tangible evidence reflects that Indian foreign missions in FATF member countries have always been extensively lobbying with hosts prior to FATF meetings to undermine Pakistan's achievements and create conditions for our grey/blacklisting. Evidence, some of the letters of these missions can be seen on the screen. It reveals that how extensive lobbying was done from between February to April 2018 for downgrading of Pakistan's status, which resulted in our grey listing in June 2018. Despite India's continuous efforts, Pakistan has come a long way.
which has also been acknowledged by the international community. On the contrary, it is India which needs to be scrutinized at FATF platform in the light of evidence presented by Pakistan, as well as recent revelations made by FinCEN, revealing Indian terror financing and money laundering regimes. In the end, I will just once again reiterate, before I hand over to the Honorable Foreign Minister, about what has happened on the LOC yesterday. It's a serious escalation. And unfortunately, the Indians have again resorted to targeting innocent civilians living in Azad Jammu and Kashmir. They had an incident a couple of days back inside India. They took some casualties, and as usual, they have again tried to externalize their internal problems. And they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. But the most unfortunate part is that Indians continue to target civilian population. Thank you. थैंक यू जी। और ये मैं आपकी इजाज़त से अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरी नज़र है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर है। The evidences presented by Pakistan provide concrete proof of Indian financial and material sponsorship of multiple terrorist organizations, including UN-designated terrorist organizations Jamaat-ul-Ahrar, BLA, and TTP. Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries, and others. We expect the international community to play its role for peace and stability in the region by A, compelling India to immediately halt its state sponsorship of terrorism in Pakistan. B, bring to justice all those involved in financing and supporting terrorism inside Pakistan according to relevant domestic and international laws. Pakistan has shared its concerns with major international partners before. We are now presenting irrefutable evidence to the world to demonstrate the Indian state's direct sponsorship of terrorism in Pakistan that has resulted in the deaths of innocent Pakistanis. The international community can no longer turn a blind eye to this rogue behavior by a state that refuses to adhere to international laws and UN conventions. Let me be clear. India is a state sponsor of terrorism that is consistently exhibiting rogue behavior. If the world does not take the Indian agenda to destabilize and undermine Pakistan and the region seriously, I'm afraid, then peace and stability in a nuclear South Asia does not seem to be their priority. Our valiant law enforcement and security agencies have resiliently fought and won the war against terrorism. We know how to defend ourselves. India's efforts to foment
Terrorism inside Pakistan will not be allowed to undermine Pakistan's stability in any way. Whether they acknowledge or not, all major powers know India is a threat to the entire region. Now, they must act to prevent it from continuing its sponsorship of terrorism against Pakistan. We reserve the right to defend ourselves in every possible way. Thank you. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। DGISPR ने भारतीय खुफिया तंजीम रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। कहा मुसद्दिका शवाहिद हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय सफ़ीर और सिफारतकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। भारत का इदारा रॉ खैबर पख्तूनख्वा और दीगर मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग कर रहा है। DGISPR ने भारतीय खुफिया तंजीम रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। DGISPR ने कहा कि CPAC को सबूताज करने के लिए भारत ने बलूचिस्तान में अपने दहशतगर्दों को फंड्स भेजे हैं। $50 लाख बलूचिस्तान और $32 लाख MQM लंदन के तारिक मीर और सरफराज मर्चेंट को भेजे। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द तंजीमों की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। भारतीय खुफिया तंजीम रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। इसी मुतालिक बात करेंगे। दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मोइनुद्दीन हैदर साहब वक्त देने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनी तौर पर देखी होगी, जो मुसद्दिका शवाहिद पाकिस्तान ने दुनिया भर के सामने रखे हैं, जिसमें वाज़ेह सबूत है कि भारत क्या प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह हमने ऑडियो नोट्स, वीडियो एविडेंसेस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी की क्या जिम्मेदारी बनती है इस सब को देखने के बाद? पहले भी पाकिस्तान ये बावर करा चुका है, आज भी करा रहा है। जी हाँ, देखिए एविडेंस बहुत सारा पेश किया गया है और पाकिस्तान बहुत अरसे से ये तमाम चीजें दुनिया के सामने रख रहा है। और डोवल साहब की तकरीरें हैं, जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो कहते हैं हम अपने खजाने के मुंह खोल देंगे और जितने तालिबान ऐसी तंजीमें हैं उनको हम इतने पैसे देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को तैयार हो जाएंगे, उनको खरीद लेंगे हम। और यही कुछ हो रहा है कि अफगानिस्तान में बैठकर वो बेइंतहा ये तंजीमों को पैसे दे रहे हैं जो पाकिस्तान में आकर तकरीबी कार्रवाइयां करते हैं। और दूसरा ये है कि अभी बाजोड़ के इलाके में बहुत इनके लोग बैठे हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी हैं, अफगानी तालिबान भी हैं जिनको खरीदा हुआ है इन्होंने। और उस सिलसिले में अफगान फोर्सेस की वहां पर इतनी पोस्टें हैं नहीं, वैसे भी उनकी फौज ज्यादा इनको रोकती नहीं है। तो ये तो दुनिया के सामने शवाहिद पेश करने का ये है कि हम दुनिया के जो अटैचीज यहाँ पर हैं उनके एम्बेसडर्स को लेके जाते हैं, LOC पर दिखाते हैं कि देखिए साहब ये गोला बारूद देखें, ये घर देखें, ये जख्मी औरत बच्चे देखें, ये हमारी है सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है बगैर किसी इश्तिहाल के, बगैर किसी चीज के। ना कोई यहाँ से जा रहा है ना कोई आ रहा है। वहां तो उन्होंने बाढ़ वायर लगाई हुई है पूरी, वहां भी तो LOC पर लगा ली थी। तो ये भारत जो है पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को हर तरह डिस्टेबलाइज करने की और सोशल मीडिया पर बेइंतहा पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाता है। लेकिन अब उनके मुंह से नकाब उतर रहा है। दुनिया को अभी कहने शुरू हो गई है कि भारत में बहुत ज्यादती है, कश्मीर में भी ज्यादती कर रहा है, अकलियतों के साथ भी ज्यादती कर रहा है और दहशतगर्दी का बड़ा घर भी बन चुका है। अब दुनिया आस्ते आस्ते पहचानना शुरू हो गई है। मसलहतन कम बोल रहे हैं लेकिन बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। और जिस तरह मोइनुद्दीन हैदर साहब, CPAC टारगेट लग रहा है भारत का, CPAC को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इस सब के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए जो CPAC है, जब भी हम ये शुरू करते हैं कोई वहां पर जिस तरह द्यामिर भाषा, उन्हें कहा पाकिस्तान ये नहीं बना सकता, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हालांकि हमने मंगला डैम जो बनाया है वो पाकिस्तान में नहीं है, मंगला डैम तो कश्मीर में है, पहले उनको कोई इतराज नहीं हुआ।
और अपने इलाके में आप जो कर रहे हो, मकबूजा कश्मीर में धड़ाधड़ हमारे चनाब पर भी डैम बना लेते हो, जेलों पर भी डैम बना लेते हो अगेंस्ट इंडस ट्रीटी, तो वो भी तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो यहाँ हम जो काम कर रहे हैं तो सी पैक तो उनका निशाना है और कोई खुफिया निशाना नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम इसको नहीं बनने देंगे, लेकिन इसमें आपको पता है पहले भी चाइनीज इंजीनियर्स को जो काम कर रहे थे केपीके में और गोमलजम डैम पर इन्होंने मारा था, अभी भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। तो ये अमेरिका इसके पीछे है, कोई यूरोप भी इसके थोड़ा वो सी पैक के खिलाफ है कि चाइना के इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन जाहिर है चाइना भी एक बहुत मजबूत मुल्क है और वो अपनी जो मजबूत पॉलिसी को हिंदुस्तान के डराने धमकाने से या एक्शन से वो उसको छोड़ नहीं देगा, वो मजबूती से इस पर चलेगा। उसने इनको एक सबक भी सिखाया अभी रिसेंटली, और कुछ इलाका जो है जिसको ये कहते हैं कि हमारा था, लेकिन चाइनीज क्लेम करते हैं कि उनका इलाका है, वो सही कहते हैं कि उनका इलाका है, तो उन्होंने इनसे छीन लिया है। उससे सी पैक का जो है पोजीशन हमारे उस इलाके की बेहतर हुई है। तो ये अपनी साजिशें करते रहेंगे, हम अपनी मजबूती से इंशाल्लाह ताला सी पैक को भी आगे मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और मुल्क की सिक्योरिटी का भी हम ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जिस तरह मोइनुद्दीन हैदर साहब, डीजी ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुसद्दिका शवाहिद मौजूद हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय सफ़ीर और सिफारतकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। अभी कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है अफगानिस्तान का दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। अफगानिस्तान को भी ये बावर कराने की कितनी ज़रूरत है? अफगानिस्तान कितना अहम रोल प्ले कर सकता है कि उसकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो दहशतगर्दी के खिलाफ? जी हाँ, ये वक्तन फक्तन जो हाई लेवल मीटिंग होती हैं जिसमें हमारे आर्मी चीफ भी जाते हैं या उनका सफीर भी पिछले दिनों मिला है आकर आर्मी चीफ से अफगानिस्तान का, यहाँ जो इस्लामाबाद में, या अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए थे, वो एक इम्पोर्टेंट वहाँ के शख्सियत हैं। कहते तो सब यही है, हम भी यही कहते हैं कि अपने सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम वाकई इस्तेमाल नहीं होने देते। हमने बहुत सख्त स्टेप्स उठाए, बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अफगानिस्तान में बदकिस्मती से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके बाकी लोग जो हैं वो बाज दफा अपने सदर साहब के कहना भी नहीं सुनते। और एक आपको याद होगा, एक उन्होंने इंटेलिजेंस चीफ को सैक किया था, उसको नौकरी से हटाया था क्योंकि हिंदुस्तान के साथ मुलव्वस था, उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। तो उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में पेनिट्रेट किया हुआ है। और ये बाकी सही बात है, उनके जो वहां पर जो सारे लोग बैठे हुए हैं सफारत खाने में, उनका मेन काम यही है कि वहां से बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो। सही। और जिस तरह आप बात भी करें मोइनुद्दीन हैदर साहब कि पाकिस्तान का रीसेंट पास्ट में पहले भी पॉजिटिव इमेज दुनिया भर में बतदरीज बेहतर ही हो रहा है, और जो अमन के लिए एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की, इकदामात हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, दुनिया भर में सराहा जा रहा है, और यकीनी तौर पर यह सब कुछ ही भारत को खटक रहा है। जी हाँ, बात यह है कि पाकिस्तान बहुत ट्रांसपेरेंट मुल्क होता जा रहा है। हम तो एम्बेसडर्स को, डिफेंस अटैचीज को हर वक्त LOC पर ले जाकर सही सूरत बता देते हैं। बालाकोट भी ले गए थे जब इन्होंने जाली हमला किया था, लेकिन ये लोग जो है ये तो जाने नहीं देते किसी को LOC पर। ये तो वहाँ जो यूनिमॉग, वहाँ के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर है, उनको भी जाने नहीं देते। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत मजबूत डिसीजन लिया है तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ। तमाम मजहबी जो शिदत पसंदी की जो बातें मुल्क में करते थे उनको बहुत सख्ती से निपटा है और बहुत कुर्बानी दी है। तो दुनिया देख रही है और इसका एतराफ भी कर रही है। और हिंदुस्तान का ग्राफ जो है इस सिलसिले में नीचे जा रहा है, सब दुनिया के सामने नीचे जा रहा है। बिल्कुल। और मोइनुद्दीन हैदर साहब, अगर एक बार फिर CPEC की बात कर ली जाए, जिस तरह हम वज़ीर ख़ारजा ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि CPEC को टारगेट कर रहा है भारत, CPEC को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। इस सब सिनेरियो में चाइना भी देख रहा है, पूरी दुनिया तो देख ही रही है इस सारी सिचुएशन को। चाइना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? देखिए, चाइना इज ए स्ट्रॉन्ग एमर्जिंग पावर और अनकरीब 2-3 सालों में वो माशी तौर पर जो अमेरिका इस वक्त लीड में है, नंबर 1 है, उसको पीछे छोड़ जाएगा। तो अमेरिका की पॉलिसी तो यह है कि अपनी फौजें उतारो, अपने बम्बार भेजो, मुल्कों को तबाही मचा दो, चाहे लीबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, यमन हो, और भी मुल्क हो। लेकिन चाइना की पॉलिसी यह है कि भाई इस किस्म का काम करो, सॉफ्ट पावर, कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, पोर्ट डेवलप करते हैं, रेलवे डेवलप करते हैं, ट्रेड डेवलप करते हैं, ताकि आपके लोग भी खुशहाल हो, हम भी खुशहाल हो। और इस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस एक सॉफ्ट तरीके से बढ़ा रहा है। और जो CPEC का जो है बड़ा जो इनका मंसूबा
वन बेल्ट वन रोड, उसमें सीपैक एक इम्पोर्टेंट लिंक है। इस लिंक के बगैर ना गवर्नर कामयाब होगा, ना इनका बाकी बड़ा जो मंसूबा कामयाब होगा। तो चाइना बहुत उसका मजबूत रिजॉल्व है कि किसी सूरत में इसको फेल नहीं होने देगा, और यही पाकिस्तान का रिजॉल्व है। हिंदुस्तान जोर लगा रहा है, पीछे उसके अमेरिका है, लेकिन ये इंशाल्लाह होके रहेगा और पाकिस्तान में इसके थ्रू जरूर खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एविडेंसेस भी सामने आए हैं, डीजी ISPR ने भी गुफ्तगू की है, शाह महमूद कुरैशी ने भी बताया है, हम भी ये बात करें कि भारत की पै दरपेश ख्याल अंगेजियां खित्ते में अमन सलामती के लिए खतरा हैं, और भारत इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। बिल्कुल सही बात है। और अभी आपने देख लिया, कश्मीरी तो 70-72 सालों से बेचारे मजालिम का शिकार हैं। अब उनको इतना दबाया जा रहा है कि वोट खड़े हुए हैं। अभी वहां पर जो ये जा रहे थे ये हुर्रियत पसंदों के पीछे, उन्हें 3-4 भारतीय फौजी जो मारने आए थे उनको मार डाला है। ये चीज तो वहां बढ़ जाएगी। अभी आप जुर्म करेंगे वहां पर, तो जुर्म का जवाब तो फिर मजलूम कोर्ट खड़ा होगा, जवाब देगा वो। पाकिस्तान को इस सिलसिले में उनको इस किस्म की खाली मॉरल और सफारती सपोर्ट देता है, बाकी हम जो है किसी उसमें लवेश नहीं है, लेकिन वहीं के लोग उठ के खड़े होकर इनको मारेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और जिस तरह वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जो कौम और दुनिया भर के सामने आज पेश किए हैं, जो डीजी ISPR ने कहा कि भारत कलदम तंजीमों का कंसोर्शियम बना रहा है, दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है, उनकी तरबियत और उन्हें असलहा फराहम कर रहा है। इस सब को देखने के बाद, इन सारे एविडेंसेस को देखने के बाद, सबूत देखने के बाद, पाकिस्तान के पास आपके ख्याल में कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं। इनको चाहिए कि अपने तमाम जितने एम्बेसडर्स हैं इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में, उनको सबूत भेजें। वो उनकी वहां की हुकूमतों को जाकर ये सामने भारत का कट्टा छट्टा रख दें, और जितने डिग्निटीज पाकिस्तान में आते हैं हम इस चीज को हाईलाइट करें। हम जो दुनिया के नेटवर्क्स हैं उस पर हमारे स्पोक्समैन जो हैं वो इस चीज को हाईलाइट करें, ताकि हिंदुस्तान के ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो सामने आ जाएं। ऑलरेडी उनके खिलाफ केस बिल्डअप दुनिया में हो रहा है, तो ये इस शवाहिद के जाने से और उनको जो है वो मेरा ख्याल में लाइमलाइट में आएंगे, और दुनिया उनको फिर कहेगी कि मत पीस को डिस्टर्ब करो इस रीजन के। बिल्कुल। दिफाई तज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीजी ISPR ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुसद्दिका शवाहिद हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय सफ़ीर और सिफारतकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। भारत का इदारा और ये खुफिया एजेंसी रॉ खैबर पख्तूनख्वा और दीगर मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग कर रहा है। ज़रगून शाह ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। ज़रगून, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग देते हुए डीजी ISPR ने जो डोजियर पेश किया उसकी बाकायदा उन्होंने स्क्रीन शॉट्स प्ले किए, जिसपे भारतीय जो रॉ के हैंडलर्स हैं उनकी बाकायदा जो है ना वॉइस क्लिप्स सुनाए गए कि किस तरह वो बलूचिस्तान में, और फिर एक क्लिप में उन्होंने दिखाया कि भारत किस तरह आज़ाद कश्मीर के इलाके जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आते हैं वहाँ IEDs लगाने का तरीका बता रहे हैं, और किस तरह अपने लोगों को वो पैसे बता रहे हैं कि जी हम आपके टारगेट के हवाले से आपको कितने पैसे देंगे। इसी तरह लाहौर में किसी अहम शख्सियत के हवाले से एक क्लिप सुनाया गया जिसमें कहा गया कि इसकी 50 लाख रुपए जो है इस शख्सियत को कत्ल करने के आपको दिए जाएंगे, चाहे आप IED से करें या किसी शूटर से करें। और इस तरह बाकायदा सबूत के साथ ये चीजें बताई गई कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने, यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट करने, आज़ाद कश्मीर में खुसूसन डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, और फिर GB का ये जो अभी स्टेटस दिया गया उसको प्रोविजनल सूबे का, उसको सबूताज करने के लिए वहाँ किस तरह की एक्टिविटीज कराई जाए, ये बाकायदा सबूतों के साथ उन्होंने पेश किया है। और राह का बताया कि किस तरह राह के जो हैंडलर हैं वो पाकिस्तान में स्पेशली बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ, उन्होंने अल्लाह नजर के हवाले से एक बातचीत बताई राह के हैंडलर की कि वो डॉक्टर अल्लाह नजर से गुफ्तगू कर रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आपने क्या क्या करना है और हमने आपको किस तीसरे मुल्क के जरिए पैसा भेजना है। इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है कि वहाँ के जो भारतीय सफारत खाना है या कौंसलेट है वो मुकम्मल दहशतगर्दी को हवा देने के हब बने हुए हैं। वहाँ पे सारा काम ही
एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज के लिए होता है, वहीं से फंडिंग आती है। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि भारत से तकरीबन 30 लोग ऐसे हैं जो दाइश के दहशतगर्द हैं, जिनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान वगैरह में उन्हें मुंतकिल किया है ताकि वो पाकिस्तान में जाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। तो ये एक बाकायदा डोजियर है पाकिस्तान के पास, ये एक सबूत आ गया पाकिस्तान के पास कि किस तरह भारत और उसकी खुफिया एजेंसीज पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने, यहाँ पे दहशतगर्दी कराने में मुलविस है। तो ये डोसियर जो है ये अब अक़वाम मुत्तहिदा को दिया जाएगा, यूरोपीय यूनियन को दिया जाएगा, P5 को दिया जाएगा और इसी तरह आलमी फोरम्स पे ये पेश किया जाएगा। और ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद है पाकिस्तान के पास कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस है। और ज़रगून, जो कि DGISPR ने यह भी बताया कि भारत के 66 दहशतगर्द कैंप अफगानिस्तान और बाकी भारतीय शहरों में हैं। भारत ने कंदहार में दहशतगर्द कैंप कायम करने के लिए $3 करोड़ अदा किए और जिस तरह वीडियो एविडेंसेस भी दिखाए गए, ऑडियो नोट्स भी सुनाए गए, इससे मुतालिक भी आगाह करें। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अफगानिस्तान का एक इलाका है हाजी गाक, उसका नाम लिया, इस तरह उन्होंने कंधार का नाम लिया, इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय कौंसलेट है उनका जिक्र किया कि उनको किस तरह पैसे दिए गए और ये ट्रांजैक्शंस जो है ये कुछ तीसरे ममालिक के जरिए हुई और इसका बाकायदा उन्होंने शवाहिद पेश किया कि किस तरह अफगानिस्तान को ये ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है ज़रगून, आप साथ ही रहिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। DGISPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पर आपने भी मुलाहिज़ा की होगी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद पेश किए गए हैं। आप क्या कहेंगे, बैनुल-अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी क्या बनती है, पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जितने आज प्रेस ब्रीफिंग का जो 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। नंबर 1 कि पाकिस्तान के जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी कौम ने लगाई है वो अपनी कौम की मदद के साथ, अपनी कौम के साथ मिलके इन तमाम नाफिज मंसूबों से बाखबर है, बल्कि उनको नाकाम बनाने के लिए अपने सरतोड़ कोशिश कर रही है। आज की सफर की दूसरी चीज जो बहुत वाज़ेह है और जिसमें बहुत दाही जरूरी है कि अब हम दुनिया के तमाम कैपिटल्स को UN से लेकर तमाम फोरम्स पर ये सबूत उनको फराहम भी किए जाए और उनको बताया भी जाए। ये तो एक पाकिस्तान का फर्ज बनता है। पाकिस्तान का फर्ज ये भी बनता है कि दुनिया को बताए कि पाकिस्तान ने जो इस किस्म के काम में दुनिया में शायद बेहतरीन मुल्क है, इससे ज्यादा कैपेबिलिटी दुनिया में किसी मुल्क की नहीं है। हमने अमन की खातिर हमने सब कुछ अपने कुर्बान कर दिया है और अपने हाथ पांव बांध के हम बैठ गए हैं। मेरा हमेशा से नुक्ता नज़र ये रहा है इस किस्म के एफर्ट का जवाब ठीक है, आप दुनिया को सबूत दे दें, लेकिन ये दुनिया की इन्वॉल्वमेंट के बगैर भारत ये कर नहीं सकता। आपने जब कहा कि गैर मुल्की जो कुव्वतें उसमें सरगर्म है या अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट हो रही है, तो अफगानिस्तान में कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं? वहाँ CIA बैठा हुआ है, और मोसाद बैठा हुआ है, वहाँ पे MI6 बैठे हुए हैं। ये वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, भारत के साथ मिलके भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये काम हो रहा है। दुनिया को बताएं, दुनिया, मेरा अपना ख्याल ये है और मुझे इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो सिवाय लिप सर्विस से कुछ नहीं करेगी। दुनिया को होश उस वक्त आएगी जब पाकिस्तान जिस गेम में इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जब पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान में उतार देगा। जिस दिन इंडिया से चीखें उठेंगी, जिस दिन वहां पे लाशें गिरेंगी, जब अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी लाशें गिरेंगी, तब पता चलेगा। मैं तब तक अपने बच्चों को इस चीज से कुर्बान होता देखता रहूं। मैं क्यों अपने दस्ताने बांध के बैठूंगा? क्यों जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत भी दी है, कुव्वत भी दी है, हमें ये अहलियत भी दी है, हम उसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? हम क्यों अपने आप को इस दफाई हिसार में लेके बैठे हुए हैं और खुद अपने आप को हम दुश्मन के सामने सीधे से पेश किए हुए? मुझे इस चीज के फ्रैंकली इस वक्त शदीद गुस्सा भी चढ़ा हुआ है कि हम सबूत दे तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करना भी चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को और भी आगे निकलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा पाकिस्तान। और जनरल साहब, जिस तरह जो शवाहिद सामने आए हैं, जो ऑडियो नोट्स हमने सुनी, वीडियो एविडेंसेस देखे हैं, उस सब को देखने के बाद ये लगता है कि एक तो भारत को CPEC खटक रहा है और फिर इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है भारत। जी, पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान खटक रहा है उनकी आंख में। पाकिस्तान बनने के बाद से उनके जहन में ये बात कि पाकिस्तान को खुदा न खासा खत्म करना है, और हमारे लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। ये पाकिस्तान के खिलाफ आज से नहीं 70-75 साल से जंग जारी है। अब तो बड़े बाकी आप जो दूसरी जंगें देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके या
और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो नॉर्मल वर्दी में जो फौजी लड़ते हैं, ये जंग उससे इंतहाई मुख्तलिफ है। और ये जंग पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से लड़ रहा है। इसमें हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हम चुप करके कुर्बानियां दी जा रहे हैं, दुनिया को बताई जा रहे हैं। ये भारत की कोशिश ये है कि भाई एक नंबर एक तो जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तान खटकता है उसमें CPEC बिल्कुल उसको मंजूर नहीं है। उन्होंने जब से ये शुरू हुआ उस वक्त से बिल्कुल से बहुत पहले से कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश ये है किसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इस कदर ज्यादा दहशतगर्दी फैलाई जाए कि लोग खौफ से अपने घरों के बाहर ना निकलें। और पाकिस्तान भी एक इंतहाई कोशिश से, इंतहाई खूबसूरती से, इंतहाई मंसूबाबंदी के तहत एक अपना पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रखे हुए है, जिससे टोटल इंक्लूसिवनेस हो रही है, पाकिस्तान वो ना कर सके। जनरल साहब, जिस तरह अब ये डोजियर पेश किया गया है दुनिया भर के सामने, कौम के सामने पेश किया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा को जाएगा, यूरोपीय यूनियन को जाएगा, क्या ये सही टाइम है कि पाकिस्तान अपने तमाम तर जो दोस्त ममालिक हैं उनको इकट्ठा करे और उनको ये बावर कराए कि वो भी बाकी जो ममालिक हैं दुनिया भर में इसको आवाज़ उठाएं इस पर कि जो भारत के मज़मूम मकासद हैं, जो अज़ाइम हैं, वो दुनिया भर के सामने दिखाए जाएं? जी, मैंने कहा कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान के इदारों का सबसे पहला फर्ज ये है कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को महफूज बनाए। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान को अपने दोस्तों को बुलाकर सब बल्कि जाकर उनको बताएं, उन दोस्तों के जरिए जो उनके दोस्त हैं उनको आगे बताएं। ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, ये तो पाकिस्तान को बहुत सारे लॉन्च कर देना चाहिए था। अब भी सही वक्त है, अब कर दिया हमने, तब इसे लेट ना करें, इसको लेके चलें इसको आगे से। इंटरनेशनल जितने भी फोरम्स हैं, जहां पर भी इस तरह की बात हो सकती है, वहां भी पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हमारे जितने सफारत खाने बाहर हैं, ये डोजियर लेके अपने अपने कैपिटल्स में, अपने अपने जहां पर उनकी तैयारी है, उनको ये दिखाएं, उनसे बात करेंगे और इंटरनेशनल फोरम पर ये बात रेज करेंगे, UN पर रेज करेंगे। पैटर्न में जिस तरह भी DGI-SPR भी कह रहे थे कि पाकिस्तान नहीं, भारत को उस पिटारे में होना चाहिए। तो पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए दोस्तों के साथ मिलकर, ये सब पाकिस्तान। सही। और जनरल साहब, जिस तरह अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सामने आई हैं, अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है और DGI-SPR ने बताया कि मुसद्दिका शवाहिद मौजूद हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय सफीर और सिफारतकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। तो अफगानिस्तान को अपना रोल प्ले करना होगा। जी बिल्कुल, याद हो आपको जो 27 फरवरी लास्ट ईयर जो हुआ था, जब तो वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से ये बात सामने आ गई थी कि काबुल इज द एपिसेंटर, जहाँ पे बैठ के मुख्तलिफ वहाँ का 200 का दाम भी जहाँ तो थी, वहाँ पे मुसाद का भी नाम लिया गया था और CIA के बगैर वहाँ पे काम हो नहीं सकता। तो ये वहाँ अफगानिस्तान की सरजमीन को तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उस बात पे तो जो चीज है ही है, पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाजें हैं जो पाकिस्तान के इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को बुर्दे इल्जाम ठहरा रही हैं। उन आवाजों को भी समझना चाहिए, उनको भी ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए और इससे हमारे जो इदारे हैं उनको बदनाम करने के बजाय उनके साथ खड़े होना चाहिए और इन तमाम आवाजों को दिखाएं। अभी जो मिसिंग पर्सन की डिटेल्स अगर आप देखें, वो इंतहाई खौफनाक है। वो लोग ये रोज हम एक ड्रामा लेके खड़े हो जाते हैं। ये अब अपने लोगों को समझाएं कि खुदा के लिए हक़ाइक़ कुछ और है, ताकि कौम के अंदर एक यकजहती की जो फिजा बनी हुई है इसको और मजबूत किया जाए। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ खड़ा करें, दोस्तों को लेके चलें जहां भी, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात है बढ़ेंगी आइंदा आने वाले जो। सही, जनरल साहब साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने, उनसे बात करेंगे। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बार फिर वाज़ेह हो गया है कि भारत को पाकिस्तान का दुनिया भर में पॉजिटिव इमेज खटक रहा है, जो एफर्ट्स हैं वो खटक रही हैं, अमन के लिए इकदाम जो किए हैं पाकिस्तान ने, ये सब भारत को खटक रहा है। और खुसूसी तौर पर जो वज़ीर ख़ारिजा साहब कह रहे थे कि CPEC को सबोताश करने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से। शहबाज गिल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं और जो हमारे प्रोफेशनल इंटेलिजेंस इदारे हैं,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इंडिया के ऊपर अपनी प्रोफेशनल बर्तरी एक तो वाजे कर दी है कि आज की इस जमाने में जिसमें इंडिया को ये लगता था कि वो छुप के अफगानिस्तान के थ्रू दूसरी जगहों से टेक्नोलॉजी में, क्योंकि पूरी दुनिया ये समझती है कि इंडिया की सुपीरियरिटी है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम बहुत पहले आ गया था। उनको इस चीज का जोम था कि शायद टेक्नोलॉजी को यूज करके और फिर लोगों को यूज करके यहाँ पे वो टेररिज्म फैला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी पाकिस्तान की अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, बल्कि जो इंटरनेशनली हमारे हमसाई की तरफ से हमारे ऊपर एक दहशतगर्दी का नासूर जो है वो हमारे ऊपर मसल्लत करने की कोशिश भी की जा रही है और किया भी जा रहा है, उसको आज चारों शान ने चित किया है। पूरी दुनिया के ऊपर वाजे कर दिया कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने दिफा की कैपेबिलिटी रखता है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान हर जाविये में प्रोफेशनली अपनी ईमानदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी दुनिया के साथ सच को भी शेयर करेगा और तमाम हकाइक को शेयर करेगा जो कुछ इंडिया यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। माजी में बदकिस्मती से हमारी कुछ हुकूमतों की जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी जो डुअल पॉलिसी थी जिसमें इंडिया की अपीजमेंट की पॉलिसी भी थी, बहुत सारी फॉरेन ताकतों की अपीजमेंट की पॉलिसी थी। अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने के बाद अब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात सोची जाती है और वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट सोचा जाता है। हमारी मसल्ला अफवाज तो हमेशा से पेशा वराना अपनी जिम्मेदारियां और प्रोफेशनलिज्म में मैं समझता हूं कि पूरे खित्ते में सबसे आगे हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल जो यहाँ पर कंफ्यूजन थी उसकी वजह से इंडिया को उसका बहुत फायदा हो रहा था। आज पूरी कौम यकजान होकर, हमारी अफवाज, हमारी पूरी कौम, हमारी लीडरशिप, हमारी अपनी जमात और बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो सेम पॉलिटिकल दूसरे एलिमेंट है अपोजिशन से भी, वो भी इकट्ठे दुश्मन को ये वाजे पैगाम पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा इस तरीके से आप दहशतगर्दी मुसल्लत नहीं कर सकते। हम इस चीज को डिफेंड करना भी जानते हैं और आपका मकरूज चेहरा जो है उसको एक्सपोज करना भी जानते हैं। बिल्कुल। शहबाज गिल साहब, जिस तरह आप भी बता रहे हैं और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, ऑडियो नोट्स सुने, वीडियो एविडेंसेस दिखाए गए हैं, अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पहले भी पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा है, दोस्त ममालिक को भी इन्वॉल्व करता रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, आपको ज्यादा वाज़े तौर पर तो इसके फॉरेन ऑफिस और हमारे जो इंटरनेशनल इंटरेक्शन के इदारे हैं वो ज्यादा डिटेल से बताएंगे, लेकिन जो एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे पता है छोटा मोटा इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफा बहुत सारे ऐसे शवाहद हैं जो इररिफ्यूटेबल हैं, जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता कहीं पे भी, साइंटिफिकली वो प्रूवन मेथड्स के थ्रू उनको प्रोवाइड किया गया है। अब बहुत मुश्किल होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी इसको लाइट लेना या इससे रूगर्दानी करना, और बहुत मुश्किल होगा हिंदुस्तान के लिए भी इस तरह के काम जारी रखना। कम से कम इससे एक फायदा फौरी तौर पर होगा कि ऐसे तमाम दोस्त ममालिक जो हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज में मजीद जो है वो तवानाई आएगी, उनकी आवाज में मजीद सख्ती आएगी अब, क्योंकि हमने उनके हाथ में एक और वेपन पकड़ा दिया है। हमने अपना सच उनके हाथ में दिया है कि हमारे साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है, नंबर एक। नंबर दो, आपको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे मुल्क होते हैं जो मिडिल में होते हैं, जो किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। उन ममालिक को भी वाज़ेह हो जाएगा कि इस खित्ते में कौन अमन की बात कर रहा है और कौन जंग और कत्लो गारत जो है उसको मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। नंबर तीन रह गए ऐसे तमाम ममालिक जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों में। उन चंद ममालिक जो हैं उनको भी आज वाज़ेह हो जाएगा, जो हिंदुस्तान ने उनके सामने अपना एक चेहरा रखा हुआ था जिसमें वो कहते थे कि हम तो पीस की बात करते हैं, हमारे मुल्क में टेररिज्म हो रहा है। आज ये वाज़ेह हो जाएगा कि असल में
हिंदुस्तान की जमीन अब टेररिज्म के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर मौजूद जो सेन लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर मौजूद जो लोग जो पीस को चांस देना चाहते हैं, अमन को चांस देना चाहते हैं, उनकी इंटेलिजेंसिया, उनके मीडिया के लोग, उनके प्रोफेसर, उनकी आम जनता जो अपने बेटों भाइयों को मरवाना नहीं चाहते जंगों में, वो तमाम लोग भी अब अपनी गवर्नमेंट, उनके अंदर भी एक प्रेशर बिल्ड होगा कि आप एक मुल्क जो अमन के रास्ते पे चलना चाहता है, पाकिस्तान भी जिम्मेदारी के साथ इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ एक सस्टेनेबल पीस चाहता है बल्कि बराबरी और इज्जत के और वकार के साथ अपने तमाम हमसायों के साथ दोस्ताना रिलेशनशिप चाहता है। तो पाकिस्तान की इस ऑफर को पाकिस्तान की कोई कमजोरी ना समझा जाए, रादर पाकिस्तान का वो स्टांस है जो हमारे बाबा कौम ने दिया, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उसी विजन के साथ चाहते हैं कि हम यहाँ से गुर्बत खत्म करें। अगर आप देखें तो हमारी पूरी गवर्नमेंट का पूरा स्टांस ही गुर्बत खत्म करने पे है, वो भले पनाह गाहे हों, भले वो बहुत सारी चीजें। और अगर हिंदुस्तान अपनी तरफ देखे तो आप दिल्ली में अगर कभी गए हो, मेरा चक्कर लगा था, तो आपको वहां पर भी बहुत हमसे भी ज्यादा गुर्बत आपको नजर आएगी, हमसे भी ज्यादा बेसरोसवानी में लोग सड़कों के ऊपर नजर आएंगे। तो इसलिए आज ये बड़ा वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान ने दिया है कि हमें मालूम है क्या कुछ हो रहा है और हमने पूरी दुनिया से उसके शवाहिद शेयर किए हैं। अब मैं पूरी दुनिया से भी अपील करूंगा और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग जो अमन को चांस देना चाहते, उनसे भी अपील करूंगा कि वो अपनी गवर्नमेंट को पे प्रेशर डालें कि इस तरह का वतीरा जो है वो ना अपनाएं और इन चीजों से इज्तनाब करें। बिल्कुल, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को हम आगाह करें, DGI-SPR ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में हैं। भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया। डॉक्टर अल्लाह नज़र ने जाली अफगान पासपोर्ट पर भारत का सफ़र किया है और भारत के 66 दहशतगर्द कैंप अफगानिस्तान और बाकी भारतीय शहरों में हैं। भारत ने कंदहार में दहशतगर्द कैंप कायम करने के लिए $3 करोड़ अदा किए। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द तंजीमों की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है। ये भी बताया कि रॉ आज़ाद कश्मीर में शहरियों और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए IEDs नस्ब करने में मुलविस है। और ये भी कहा कि पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और APS में भी रॉ मुलविस थी। इन हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड की गई। भारत AJK और GB में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत ने पाकिस्तान में अहम शख्सियात को कत्ल करने की भी मंसूबाबंदी की। DGI-SPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है और ये भी बताया कि CPAC को सबूताज करने के लिए भारत ने बलूचिस्तान में अपने दहशतगर्दों को फंड्स भेजे हैं। $50 लाख बलूचिस्तान और $32 लाख MQM लंदन के तारिक मीर और सरफराज मर्चेंट को भेजे। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द तंजीमों की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है। उनसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हीं के हमरा और ये कहा कि मज़ीद खामोश रहना पाकिस्तान के मफाद में नहीं। ये खामोशी खित्ते के अमन के लिए भी अच्छी नहीं। 9/11 के बाद दुनिया देखा कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन बन चुका है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में $126 अरब का नुकसान उठाया। भारत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा था और ये भी कहा कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जो हम कौम और दुनिया भर के सामने पेश करें हैं, जो कि बाद में पेश भी किए। उन्होंने एविडेंसेस दिखाए, ऑडियो नोट्स दिखाए और वीडियो एविडेंसेस भी मौजूद थे। और ये भी बताया वज़ीर ख़ारजा ने कि पेशावर और कोयटा में होने वाले धमाके भारत मंसूबों के जाहिर करती हैं। दहशतगर्द तंजीमों को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उलमा और काबिल ज़िक्र अफराद को निशाना बनाएं। आज TTP, BLA, BLF और BRA के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें की जा रही हैं। नवंबर में पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशतगर्द कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया गया है। ये कहा है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने और वाज़ेह सबूत पेश किए हैं। आज DGI-SPR ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद थे, जिनमें हमने देखा कि ऑडियो नोट्स दिखाए गए, सुनाए गए, वीडियो एविडेंसेस दिखाए गए और बताया कि
मुसद्दिका शवाहिद हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय सफ़ीर और सिफारतकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ खैबर पख्तूनख्वा और दीगर मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग कर रहा है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बताया कि भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया। डॉक्टर अल्लाह नज़र ने जाली अफगान पासपोर्ट पर भारत का सफ़र किया। MQM लंदन के दहशतगर्दों को भी भारत ने असलहा और बारूद फराहम किया है। अजमल पहाड़ी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने तस्लीम किया कि भारत ने अल्ताफ ग्रुप के लिए दहशतगर्द कैंप कायम किए। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द तंजीमों की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है। भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया है।